أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ ہم سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں. ہم لوگ ایک بار پھر آئے ہیں واپس اس کتاب پر، القراءۃ الواضحہ. آج ہم لوگ کریں گے لیسن 8. آج جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آج گرامر کا وہ کمپوننٹ کریں گے، وہ پارٹ کریں گے جو قرآن میں اور حدیث میں بہت زیادہ، سب سے زیادہ آنے والا. 2 مرکب ہے سب سے زیادہ آنے والے، 2 فریزز ہیں سب سے زیادہ آنے والے. آپ ایک کر چکی، مرکب جاری کر چکی کچھ حروف جر کے ساتھ، اور آج دوسرا مرکب کریں گے جو بہت کامن بات کو ہم بہت آسانی سے قرآن میں پہچان سکتے ہیں. تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا مرکب کو ایکسپلین کر دوں. اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ کلاس میں آنے والے ہوں سارے لوگ آپ موجود ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو کچھ ٹرم سے بس سنتی چلے. جیسا کہ میں نے بار بار کہا، یہ کلاس آپ کی لائٹ کلاس ہے، اس میں سننے کا کام زیادہ ہے، یاد کرنے کا کم ہے، تو بس سنتی چلے. سنگل ورڈ کو کہتے ہیں مفرد. ٹرمس تو ہمیں کسی بھی لینگویج کو جاننے کے لیے، ٹھیک ہے، شروع میں ہم اس کو اردو میں کر سکتے ہیں ایکسپلین اور سمجھ سکتے ہیں، انگلش میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن سلولی جب ہم کوئی لینگویج سیکھ رہے ہیں تو اس کی ٹرمینالوجی ہمیں جاننا ضروری ہے. تو یہ ہو گیا مفرد، مطلب ایک سنگل لفظ. جیسے کہہ دیا میں نے کتاب، یہ کیا ہے؟ یہ سنگل لفظ، اس کو کہیں گے مفرد. اور جب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں مرکب. مفرد اور مرکب 2 یا 2 سے کمپاؤنڈ ورڈز ہو گئے. یہ ورڈ ہو گیا اور یہ کمپاؤنڈ ورڈز انگلش میں. جیسے کہتے ہیں فل بیتی، یہ آپ نے کیا تھا پہلے، فل بیتی. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیے 2 لفظ ہو گئے، فی ایک لفظ ہے، بیت ایک لفظ ہے، اور یہ فل بیتی آپ کو پتا ہے فی کی وجہ سے یہ جر میں چلا گیا، فل بیتی گھر میں، تو یہ مرکب ہو گیا. اسی طرح کتابن تھا، لیکن اگر ہم کتابو زیدن، کتاب زیدن، تو یہ کیا؟ زید کی کتاب. یہاں پہ دیکھیں کمپاؤنڈ ورڈ ہو گیا. تو آج ہم لوگ یہ والا آپ کر چکے مرکب اور یہ والا کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر. کتاب زیدن آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کتاب کا تعلق پتا چل رہا ہے کہ زید سے ہے نا. کتاب ہے ہمارے سامنے اور اس کا تعلق پتا چل رہا ہے کہ زید سے اس کا تعلق. ایسے کمپاؤنڈ ورڈز کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مرکب اضافی. اور نام اس لیے آسان ہے رکھنا کیونکہ یہ کام بھی یہی اضافت کا کر رہے ہوتے ہیں. تو 4 ڈفرنٹ ٹرمز جو آپ زندگی میں اپنی سنتی آئیں گے مرکب اضافی کے لیے، وہ سارے میں یہاں لکھ دوں. مرکب اضافی میں ایک اسم سے دوسرے اسم کا تعلق پتا چلتا ہے. آپ دیکھیں پتا چل رہا ہے کہ کتاب کا تعلق زید سے ہے. ٹھیک ہے، تعلق پتا چلتا ہے. اضافت، اسی تعلق کے لیے تھوڑا فائن ٹیون ورڈ اضافت ہے، اور عربک میں یہی اضافت ورڈ زیادہ یوز ہوتا ہے. ملکیت، تعلق، اضافت، ملکیت. ملکیت دیکھیں کتاب پتا چل رہی ہے کہ زید کی ہے، یہ زید کی ملکیت ہے، تو ان دونوں الفاظ کے بیچ میں ملکیت کا بھی پتا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تعلق، اضافت، ملکیت اور نسبت. یہ نسبت، یہ سارے جو ہے سینونیمز ہیں اسی تعلق کے، ہے نا. تعلق، نسبت، ملکیت، اضافت. ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق پتا چل رہا ہوتا ہے، اضافت پتا چل رہی ہوتی ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں مرکب اضافی. جس اسم کا تعلق اسے کہتے ہیں مضاف، اور جس سے تعلق اسے کہتے ہیں مضاف الیہ. الیہ جو ہے وہ الہ اور ہو سے مل کے بنا ہے نا، الہ اور ہو سے، وہ الہ کی وجہ سے ہی ہو گیا مضاف الیہ. مطلب
इसकी तरफ ताल्लुक, इला इसकी तरफ है ना, तो जैद की तरफ पता चल रहा है कि किताब का ताल्लुक इसकी तरफ है, तो मुजाफ मुजाफ इलैह। इस तरह याद कर ले, या तो इस तरह याद करें कि इस कंपाउंड वर्ड में पहला इस्म छोटा वाला है और दूसरा वाला इस्म बड़े वाले नाम वाला है, मुजाफ इलैह। बस ये दो, इतनी टर्म्स याद करनी। इसमें से ये 3 टर्म मुरक्कब इजाफी, इसमें से इजाफत और ताल्लुक, ये 2 याद कर ले। पता ये भी हो, क्योंकि कोई कोई कहेगा मिल्कियत, कहीं कोई निस्बत, और मुजाफ और मुजाफ इलैह। ठीक है, ये इतने टर्म्स आपको अपनी बुक में लिखने हैं। जो डबल टिक वाले लफ्ज हैं वो आप नोटबुक में अपने नोट कर लीजिएगा इस एग्जाम्पल के साथ। किताबु ज़ैदिन में बाद में लिख लीजिएगा किताबु ज़ैदिन। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन, ये थी ये बताने के लिए कि ये क्या होता है। अब ये कुछ रूल फॉलो करते वो भी देख लेते हैं। यहाँ लिख दूं मैं किताबु ज़ैदिन, मुजाफ, ये इसका एराब हल्का होता है, हमेशा इसका एराब हल्का होगा। मुजाफ का एराब क्या होगा? हल्का होगा। एराब हल्का होने का क्या मतलब है? गौर से सुनिए। अगर जो है ना ये सब सुनने में लग रहा हो मुश्किल है कि साउंड बैकग्राउंड से आ रही हो आपके दिमाग से, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, बहुत ही आसान है। और चीजों को इस क्लास में खासकर चीजों को एकदम गेम की तरह ली। चीजों को अगर आप ड्रामा देखेंगे तो वहां भी तो बड़े ट्विस्ट एंड टर्न आते होंगे, तो हमें तो वहां मजा आता रहा होता है कि अच्छा इस तरह से ये हो गया, मैंने तो ये सोचा था, यहाँ तो ये ऐसे हो गया। उसको हम इंजॉय करते हैं। बल्कि अगर ट्विस्ट एंड टर्न ना आए तो शायद ड्रामा ही देखना वाला छोड़ दे। तो इन चीजों में ट्विस्ट टर्न आता है तो शैतान उसको इंटरेस्टिंग बना के पेश कर देता है। लेकिन जब हमारी क्लास में ट्विस्ट एंड टर्न आता है तो सेम शैतान कहता है ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ी अजीब अजीब बातें हैं, ये तो बड़े अजीब अजीब टर्म्स है। तो बस मेरे भी ट्विस्ट एंड टर्न को उसी तरह से एंजॉय करें। एराब हल्का होता है। एराब हल्का होने का क्या मतलब है? तन्वीन नहीं आएगी, तन्वीन की जगह सिंगल हरकत आ जाती है। मुजाफ है, अब देखिए वहां मैंने लिखा था ना किताबुन, आपने वैसे जो कोई बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करता है, माइन्यूट ऑब्जर्वर है, उसने नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पे तो लिखा किताबुन और यहाँ लिखा किताबु ज़ैदिन, यहाँ से किताबुन तन्वीन हटा दी थी। तो कभी भी मुजाफ का एराब हैवी नहीं होगा, हल्का होगा, मतलब तन्वीन नहीं होगी, सिंगल हरकत होगी। ये याद करना है आपको मुजाफ के बारे में। और मुजाफ इलैह का क्या है? हमेशा देखिए, वेरी रेयरली ये वर्ड यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शंस बाकी हैं, ग्रामर में हर रूल की एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन कहीं कहीं हमेशा वर्ड यूज होता है। वो एक हमेशा वर्ड इसके केस में भी यूज होता है। ये हमेशा हालते जर में होगा। और आपने इसीलिए देखा कि मैंने आपको शुरू से बता रखा है कोई भी इस्म बाय डिफॉल्ट यानी उसकी अपनी नेचुरल हालत जो है वो पेश की होती है, पेश या पेश तन्वीन की होती है। जैसे किताबुन लिखा मैंने इसको किताबन या किताबिन नहीं लिखा, क्योंकि ये अकेला था, इसके आगे पीछे कोई चीज नहीं है जो इसकी पेश को चेंज कर रही हो जेर या जबर में। ये है मुजाफ इलैह ज़ैदिन। और जब इससे पहले मुजाफ आ गया तो इसको हर हाल में अब हालत जर में जाना है। और आपने अभी परसों की क्लास में किया ज़ैदुन ज़ैदन ज़ैदिन, और ये है ज़ैदिन हालत जर में। अब दोनों क्लास अगर आप देखती हैं कि कभी गैप हो जाता है क्लास में, तो चूंकि वहां एराब हमने सोचा कि कंप्लीट हो जाए, तब मैं इस लेसन पे आऊं जिससे आपके लिए बहुत आराम हो। बिना एराब कंप्लीट किए अगर मैं इधर लेके आती तो इसमें अभी आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है माशाल्लाह, तो आपको हमें समझाने में भी आसानी है और आपको समझने में भी आसानी है। तो मुजाफ इलैह का ये रूल याद रखना है कि हमेशा हालत जर में होगा। अब आप हालत जर के लिए खुश हो जाएं कि अभी आपने सिर्फ 10 क्लासेस ग्रामर की एंड प्लस यहाँ पे आपने 8 की, और आपको किसी भी इस्म के जर में जाने की
सारी वजूहात पता चल गई। यानी कुरान में अब कहीं भी आपको जेर आ रहा होगा तो आप समझ जाएंगी कि ये जेर क्यों आ रहा है। दो वजह हैं। इस्म के हालत जर में जाने की वजह, दो ही वजह है। उससे पहले, इस्म से पहले हरफे जर आ जाए, जैसे फी आया तो अलबैतु को अलबैती बन जाना पड़ा। और इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत की है। अगर कोई अपनी बुक और या वीडियो अगर ओपन करके सुनता देखता रहा होगा तो उसको ये चीज भूली नहीं होगी। फिल बैती, ये हरफे जर है और ये इसम है, ये हरफे जर में चला गया। ये है एक वजह। दूसरी वजह क्या है कि वो इसम मुजाफ इलैह हो, मतलब वो इस मुरक्कब इजाफी का सेकंड वाला पार्ट। बस यही दो वजूहात हैं अस्मा को हालत जर में जाने की। ये जर की हालत जो सबसे आखिर वाली थी, ये सबसे आसान है। आप देखेंगे कि मरफू होने के बहुत सारे रीजन धीरे धीरे आपको पता चलेंगे, 6-7 हो सकता है, उससे भी ज्यादा। इसी तरह मंसूब होने के भी 5 4 5 तो पता चलेंगे ही इंशाअल्लाह ताला। तो मरफू और मंसूब यानी किसी इस्म के हालत रफा और हालत नसब में जाने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन हालत जर में जाने के सिर्फ ये दो रीजन है। तो आज के नोट्स आप अच्छी तरह इंशाअल्लाह ताला बना लीजिएगा। जो आपको जब मैं ग्रामर की वहां पे क्लास करूंगी तो शायद ये मुरक्कब जारी वहां पे आएगा, मे बी 18th क्लास में, मे बी वहां पे, तो वहां भी वक्त है। तो आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे अच्छी तरह और कभी कभी देखती रहेंगी, तो जब वो आएगा तो इंशाअल्लाह ताला आसानी होगी। एक तीसरी बात भी बता दें कि इस लेसन में, लेसन 8 में मुजाफ इलैह ज्यादातर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। जैसे अगर हम कहते किताबु ज़ैदिन, जैद की किताब, लेकिन अगर मुझे कहना हो मेरी किताब तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, किताबी। तो ये बा के बाद जो ये या आई है किताबी, इस या ने बता दिया कि किताब मेरी है। इसी तरह किताबु का, तेरी किताब, और ये तेरा भी बॉय है कोई, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो वही हुआ हुमा हुम नहीं यूज होगा, बल्कि इसके लिए प्रोनाउन यूज होगा, ये दूसरे किस्म का प्रोनाउन यूज होगा। अब प्रोनाउन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जमीर यानी प्रोनाउन, इससे पहले आपने पढ़ा था हुआ, आई थिंक हम, अंता, अंती, अना, नहनु, ये सब आप देख रही हैं। हमेशा आपको कभी भी हुआ जो है किसी से अटैच होके नहीं आएगा, हुआ जो है ऐसे अलग से ही आपको नजर आएगा। हम तो अटैच हो जाता है पीछे जाके, क्यों होता है वो भी बताएंगे कि इसका अटैच वाला भी हम ही है इसलिए, ठीक है। अंता, ये भी आपको हमेशा ऐसे अंता नजर आएगा, ये किससे पहले कुछ ऐसा कुछ भी आगे पीछे होगा नहीं। तो इस तरह की जमायर को कहते हैं मुनफसिल। क्यों मुनफसिल कहते हैं, क्योंकि फासले से ये होती है, ये किसी से अटैच होके नहीं आती। मुनफसिल या डिटैच्ड लिख देते हैं, डिटैच ज्यादा आसान है, डिटैच्ड, ठीक है। अब हमें ये प्रोनाउन अब मुजाफ इलैह की जगह यूज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसे इसके साथ मिल के आना पड़ेगा। किताब के साथ, हमें किताब के साथ अना नहीं लगा सकते, किताब, किताबू, अना नहीं बोलते, कभी भी ऐसे नहीं होता। तो अब हम इन्हीं जमायर को हालत जर वाली जमायर हम लेंगे। हुआ जो है उसकी हु लेंगे, हुम का हुम ही होता है, इसका डिटैच अटैच दोनों सेम है। अंता का हो जाता है, अंति की हो जाता है, अना या में हो जाता है चेंज, और नहनु ना में हो जाता है चेंज। रब्बना बोलते हैं ना, रब्बुना, रब्बना। तो ये जमायर है। और ये क्या है, इन्हें कहते हैं मुत्तसिल। अभी वजह भी बता देते हैं तो याद होने में आसानी हो जाएगी। मुनफसिल ये है फासले से, फा, स्वाद, लाम, फासला, मतलब ये अलग रहेंगी। मुत्तसिल वस्ल से है, वस्ल होता है मिलने को,
मिलने की बात होती है, अटैच होने की बात हो गई इसलिए यहाँ पे। तो ये इन्हें कहते हैं मुत्तसिल और इन्हें कहते हैं मुनफसिल। ठीक है, तो आज हम यूज करेंगे ये वाले ज़मायर। ठीक है, चलिए चलते हैं वापस अपने लेसन। ये थी कुछ इंफॉर्मेशन। ये है आपका 8th लेसन और ये है उसकी एक्सरसाइज। लेसन हम करेंगे और एक्सरसाइज आप घर में खुद करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको अच्छी तरह समझे। अना वलदुन, ये तो सबको समझ में आ गया, मैं एक लड़का हूं। इस्मी खालिद। अब ये इस्मू शुरू का एक दो एक्सप्लेन कर दें। प्लस या, आपको पता है कि या अपने से पहले जेर की डिमांड करती है, वो पेश नहीं लेती, इसलिए ये बन गया इस्मी। ये अब कितनी अच्छी बात है, सुभान अल्लाह, कि सबसे बड़ी बात है कि द मोस्ट सिस्टमेटिक लैंग्वेज, जो 3-4 लैंग्वेज से वास्ता हुआ, तो उसमें ये देखा गया कि सबसे ज्यादा सिस्टमेटिक लैंग्वेज अरबिक। तो इसको सीखना इसलिए सबसे ज्यादा आसान है। एक्सेप्शंस और ये चीजें बहुत कम है, एक पैटर्न फॉलो कर रही होती है हर चीज, बिल्कुल साइंस है। तो मेरे हिसाब से तो अगर अरबिक लैंग्वेज को साइंस की कैटेगरी में डाल दिया जाए, तो साइंस का क्या मतलब होता है कि आप वहां जो पढ़ रहे हैं वो एक सिस्टम फॉलो कर रही है। ठीक है, आर्ट्स का मतलब है कि आर्ट इज इन योर हैंड, आप कुछ भी बना ले कैनवस पे, दैट इज आपके कंट्रोल में है। तो इसी तरह लैंग्वेजेस भी अहले जबान के कंट्रोल में होती हैं, वो जैसा चाहे तोड़े मरोड़े। तो जाहिर है यहाँ भी अक्सर कह देते हैं हम लोग की अहले जबान ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे कम यहाँ पे। अब देखिए इसमुई होता तो कितना मुश्किल होता, इसमुई बोलना कितना मुश्किल है, अकेले तो फिर भी बोल लिया, लेकिन एक जुमले के बीच में ये बैठ रहा है इसमुई आके, तो बहुत ही मुश्किल होती। तो इस वजह से या का ये रूल है कि या अपने से पहले जेर की डिमांड करता है और वो पेश को जबर को जेर में चेंज कर लेता है, जबर को तो फिर भी छोड़ देता है, इसीलिए आपको लीन के कायदे मिल जाते हैं, आई वाला मिल जाता है ना, लेकिन उई कभी नहीं मिलता। तो ये इसमी हो गया। तो जब भी हम इसमी देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये मेरी की बात हो रही है, मेरा लड़का है चूंकि, इसलिए मेरा की बात हो रही है, क्योंकि वलदुन आगे आ गया। और याद रखें कि ये या मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही है, वलदुन के लिए भी बिंतुन के लिए, दोनों के लिए सेम। आगे आप देखेंगे, जबकि दूसरे प्रोनाउंस थोड़ी फर्क हरकत के साथ आते हैं। अना वलदुन, मैं एक लड़का हूं। इस्मी खालिद, मेरा नाम खालिद है। अब आप देख रही हैं नाम का ताल्लुक मुझसे हो रहा है, नाम का ताल्लुक मुझसे है, तो यहाँ पे इसमी क्या हुआ, मुरक्कबे इजाफी हुआ। आपका ये काम है कि अपने प्रिंट आउट में जितने भी मुरक्कबे इजाफी हैं वो आप रेड पेन से अंडरलाइन करेंगे। यहाँ तो मैं बताती चलती हूँ। तो इसमें ये या जो है मेरे की जगह पे, और शुरू में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद देखिए अना बिनतुन, मैं एक जैसे दोनों साथ ले रही हूँ इसलिए नीचे आ गई। अना बिनतुन, मैं एक लड़की हूँ। इसमी सलमा, मेरा नाम सलमा है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया आपका मुरक्कबे इसमी, ये भी इसमी। आप ऐसा कीजिएगा कि अंडरलाइन मत कीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमी खालिद, अना बिनतुन, मैं एक लड़की हूं। इसमी सलमा, मेरा नाम सलमा है। तो इजाफत उसका, उसकी, उसके से भी पता चलता है, और रा री से भी पता चलता है। हमारा, हमारी, मेरा, मेरी, मतलब मुतकल्लिम के लिए जब बात करने वाला किसी चीज की निस्बत अपने आप से कर रहा होता है तो उस वक्त रारी यूज होता है। तो यहाँ पे मेरा ये बता रहा है प्रोनाउन को, ये माइन को बता रहा है, माइन, और इस पेन है। ठीक है, अंता तिलमीदुन, तुम एक तालिबे इल्म हो। इस्मु का साजिद, यहाँ देखिए ये इस्मु का होगा, लिखा हुआ है उतना क्लियर नहीं था तो मैंने लगा दिया, क्योंकि अंता है, अंता मतलब होता है यू मेल, तो इसके साथ अब अंता के साथ जमीर भी मेल वाली आएगी। अंता है तो उसके साथ का आएगी, अंती है तो इसके साथ की आएगी।
कितना सिस्टमेटिक चल रहा है सब कुछ ना, कितना आसान है। जबर तो जबर, जेर तो जेर, सो इजी। अंती तिलमीदुन, इस्मुकी स्वाद, तुम्हारा नाम स्वाद है। हुआ रजुलुन, वो एक आदमी है। इस्मुहु, अब ये देखिए इस्मुहु माजिद, तो ये इस्म नाम और हु उसका, इस्मुहु माजिद, उसका नाम माजिद है। हिया मरअतुन, हिया मरअतुन, ये यहाँ पे मैं हरकत लगा दूं अगर आपकी भी पीडीएफ में क्लियर ना हो तो। मरअतुन, यहाँ पे हम ये हमजा है इसलिए आपको वहां कुछ हरकत कंफ्यूजिंग सी लग रही। ये अरबिक फॉन्ट है ना, तो हमजा, छोटा सा हमजा लिखा जाता है अलिफ के ऊपर। मरअतुन, हिया मरअतुन, इस्मुहा जैनब, वो एक औरत है, उसका नाम जैनब है। अब ये देखिए हा की जमीर हर के लिए यूज होती है, ठीक है। उसका नाम जैनब है, तो ये इस्मुहा हो गया मुरक्कबे इजाफी। इस्मु की ये सारे मुरक्कबे इजाफी है, ये सब आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये फर्स्ट पेज में कर रही हूँ, सेकंड पेज पे आप लोग आएंगे। हादा इब्नु माजिद, अब देखिए हादा और इब्नु, आपको पता है इब्नु का हमजा हमजतुल वसल है, इस्म का भी हमजा हमजतुल वसल, इसी तरह इब्न का भी हमजा हमजतुल वसल है। तो जब हमजतुल वसल है तो जाहिर अगर पीछे इसके कोई वर्ड आ गया तो अब वसल करना पड़ेगा, अब मिलाना पड़ेगा। हादबनु माजिद, ठीक है, इसको गौर से सुन लीजिएगा। हादबनु माजिद, ये माजिद का बेटा है। हादिही बिन्तु माजिद, ये माजिद की बेटी है। बिन्तु माजिदिन, यहाँ पे अब चूंकि ये साकिन कर रहे हैं, अब ये लगा नहीं रहे हैं। मैंने बताया कि इस बुक का रूल क्या है कि जब एक बार आपने मुरक्कब समझ लिया तो शुरू में देखिए इन्होंने इसमुकी पे लगाया हुआ है, वो तो नजर नहीं आ रहा था तो मैंने लगा दिया, लेकिन धीरे धीरे ये क्या करेंगे, ठीक है, मुजाफ इलैह की लास्ट की हरकत गायब करेंगे, क्योंकि कंफर्म है कि वहां हालत जर ही होगी, तो वो हमें पता है। और जब हम बोलते हैं तो हम साकिन करते हैं, अरब अहले अरब जब बोलते हैं तो हादी बिन्तु माजिद कहेंगे, माजिदिन नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है कि हम लोग अपने शुरू में याद रखने के लिए जेर की तरह से बोल सकते हैं, इसकी इजाजत है। हादी बिन्तु माजिदिन अगर आप कहना चाहें तो कह सकती हैं, लेकिन जब आपको ज्यादा अरबिक आएगी तो फिर आप कहना छोड़ देंगे। ये माजिद की बेटी है। हादा वालिदी, ये मेरे वालिदू था, वालिदुन था, और उसके बाद या लगा वालिदी, ये मेरे, और एराब आपको हल्का करना पड़ा, वालिदुन तो नहीं छोड़ सकती ना, अब आप वालिद का एराब हल्का करना पड़ेगा, और या को आप हालत जर वाली जमीर लानी पड़ेगी। तो हालत जर वाली जमीर मेरे की क्या थी, अना की क्या थी, या थी। अना की जमीर क्या थी, या थी, तो इसलिए वालिदी हो गया। हाजा वालिदी, ये मेरे वालिद हैं। हादिही उम्मू का, अब ये देखिए उम्मू का है, अब ये किसी लड़के से बात हो रही है। ये माँ चूंकि फेमिनिन है इसलिए हाजी ही होगा, लेकिन उम्मू का जिससे बात हो रही है वो लड़का है, तो इसलिए का की जमीर आई है। तो हादिही उम्मू का, ये तेरी अम्मी है, ये तुम्हारी अम्मी है। इस्मुल वालिदी माजिद, अब इस्मुल वालिदी यहाँ पे मुरक्कबे इजाफी, ये है आपका मुब्तदा, आपका हो गया मुरक्कबे इजाफी। इस्मुल वालिदी, वालिद का नाम माजिद है। इस्म, अच्छा यहाँ पे इस्मुल उम्मी जई, देखिए इस्मुल उम्मी होगा, ये उम्मू नहीं कभी कह देंगी आप, ये चीज का इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस जैसे हम लोगों ने जर वाले मुरक्कबे जारी में इसकी फिल बई थी और मिनस समाई ये सब प्रैक्टिस की होगी, बिल्कुल इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है कि जब भी दो मुरक्कब बन रहे, इस्मुल उम्मी, अम्मी का नाम जैनब है, जैनबू जैनब है। इस्मुल इब्नी, इस्मुल इब्नी खालिद, बेटे का नाम खालिद है। इस्मुल बिनती स्वाद, बेटी का नाम स्वाद है। ये ऐसा हो रहा है जैसे किसी फैमिली के बारे में बता रहे हैं, कोई पिक्चर दी है, उसमें एक फादर है, एक मदर है, एक लड़का है, एक लड़की, तो बता उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इस पिक्चर में वालिद का, इसमें ही नहीं कह रहे ये मेरे वालिद हैं, ये किसके वालिद है, ये नहीं पता चल रहा है,
کس کے والد ہیں. تو یہاں پہ مرکب کیسے بن رہا ہے؟ والد کا نام. تو وہ پکچر دی ہوئی ہے آپ کو ایک فیملی کی, اور اس کو آپ ایکسپلین کر رہی ہیں کہ اس پکچر میں والد کا نام یعنی فادر کا نام ماجد ہے, مدر کا نام زینب ہے, بیٹے کا نام خالد ہے, اور بیٹی کا نام مطلب ان کے بیٹے کا نام ہوا, اور لیکن ان کے نہیں لکھ سکتی کیونکہ بس اتنا ہی ہے, اسم البنتی, بیٹی کا نام سعاد ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا الحمدللہ فرسٹ پارٹ اس کا کمپلیٹ. اب محادثہ. محادثہ مطلب ہوتا ہے کنورزیشن یا گفتگو, بات چیت, عام اس میں بات چیت. تو کر لیتے ہیں, اور اس کے لیے میں ہر 4 لائن کے لیے الگ الگ لوگوں کو بلاؤں گی. فرزانہ کا مائک آلریڈی انمیوٹ ہے ماشاءاللہ, تو فرزانہ ہی آ جائے. دیکھیں یہاں پہ ہے من انتا. ہمیشہ اس کلاس میں اپنے پرنٹ آؤٹ کو کھول کے رکھیں, کیونکہ یہ بک آپ نے دیکھا بہت چھوٹی ہے, اس کی پکچر بہت چھوٹی ہوتی ہے. جب ہم اس کو انلارج کرتے ہیں تو میری اسکرین پہ یہ اتنی کلیئر نہیں ہوتی, تو اس لیے ساتھ میں آپ رکھ لیا کرنا. من انتا, تم کون ہو, ہے نا. من انتا, انتا کا مطلب ہوتا ہے یو میل. آنسر دیجئے فرزانہ. میم میں اپنا نام بتاؤں گی, یہ یہاں پہ جو لکھا ہوا وہ بتاؤ. نہیں, جو یہاں لکھا ہے وہ بتائیے. انا تلمیذن. ویسے بھی آپ انتا تو نہیں ہے نا, آپ تو انتی ہیں. انت انا تلمیذ زن. انا تلمیذن, انا نہیں کہیں گی, یاد رکھیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ انا, اس کو جلدی کریں, یہ زیرو ہے, یہ الف ڈزنٹ ایگزسٹ. مطلب الف کو نہیں پروناؤنس کرتے ہیں, تو قل یا ایھا الکافرون میں بھی ایسی جلدی سے کریے, انا کریے, ٹھیک ہے. انا تلمیذن, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. من انتا, پڑھیے. من انت انا تلمیذن. آپ یہ والا سینٹینس پڑھیے جہاں میرا پین ہے. میم مجھے پتہ نہیں چل رہا. اوکے. یہ والا. انا مسلمن. جی ہاں, انا مسلمن, جتنا اتنا نا. انا مسلمن. اس کے بعد دیکھیے یہ ہے ما اسم کا, لیکن جیسے ہی ہم نے بتایا کہ اسم کا یہ حمزۃ الوصل ہے, اسی لیے اس کتاب میں جب بھی حمزۃ الوصل ہوگا تو وہ صرف ایسے ہی لکھا ہوگا, حالانکہ وہاں بھی حمزہ ہونا چاہیے تھا سواد کے ساتھ, لیکن بنا حمزہ کے ہے. تو مسم کا, اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس حمزہ کو ڈراپ کرنا ہے آپ کو. مسم کا. مسم کا مینس واٹس یور نیم, تمہارا نام کیا ہے؟ اسم ساجد. ہاں, اب اس میں یہاں پہ تو لمبا نہ کریں, یہاں آپ نے لمبا کر دیا تھا, اس کو لمبا کریں تو یہ آپ نے چھوٹا ہی رکھا. اسمی ساجد, ٹھیک ہے. اسمی, اس کو لمبا کریں. اگر صرف کہیں گے اسمی ساجد تو یہ یائے متکلم تو غائب ہو گئی, مطلب یہ میرا والا ورڈ تو آپ کا غائب ہو گیا. اسمی ساجد بولے. اسمی ساجد. ہاں, اسمی ساجد, میرا نام ساجد ہے. من ربو کا. رب اللہ. جی ہاں, ویری گڈ. یہ سوال سب لوگ یاد کر لیں, سب کے لیے. من ربو کا. ربی اللہ. تو دیکھیں اب خبر میں غلطی نہیں ہونی چاہیے, ربی اللہ نہیں, ربی اللہ, کیونکہ ربی کو جو ہے اب یہ ہمارا ربی کی ہمیں یا بھی ظاہر کرنی ہے. یہاں پہ اگر ہم ظاہر نہیں کریں گے تو میرا رب کا میرا تو چلا جائے گا. اب یہ ہمارے پاس ربی ہے جس میں یا کے اوپر سکون ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ آگے ہمیں اللہ کی لام جو فرسٹ لام ہے, یہ تو حمزۃ الوصل ہے نا, یہ پہلا والا, اس لام سے جا کے ملانا ہے. پہلے والے لام پہ بھی ساکن ہے, تو 2 ساکن ایک ساتھ ملا کے پڑھے نہیں جا سکتے, تو اس لیے عارضی بولتے وقت ہم یا کے اوپر زبر لگا کے پڑھتے ہیں. ربی اللہ بولے. مائک میوٹ ہے, سب لوگ بول لیں. ربی اللہ. اب دیکھیں جب خبر میں یہ سوال ہوگا, سب سے پہلا سوال یہی ہوگا. اب آپ وہاں پہ آپ نے تھوڑی گرامر پڑھ لی, آپ تو ایک دم صحیح آنسر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فرشتہ ایک دم خوش ہو جائے. ربی اللہ, اور اس سے زیادہ اللہ خوش ہو جائیں گے. ربی اللہ, ٹھیک ہے. من ربی اللہ, یہ یا کے اوپر زبر زبر پڑھنے کے لیے. چلیے پڑھیں اس کو, یہ دونوں سینٹنس پڑھیے فرزانہ. میم کہاں سے؟ یہ دونوں سینٹنس
अच्छा, मन रब्बू का रब्बी अल्लाह। वेरी गुड। रब्बी अल्लाह, लाम को पुर कर लिया। चले अल्हम्दुलिल्लाह फरजाना, जज़ाकल्लाह खैर। अब आ जाए रिजवाना। जी मैम। पढ़िए, आप ही पढ़िए, क्वेश्चन भी और मन आंसर भी। जी, मन हाजा, ये कौन है? हाजा अखी, ये भाई है किसका भाई है? मेरा। अखी, मेरा भाई है। जी हाँ, मेरा भाई है, ठीक है। आगे जी। चलिए, दूसरा सवाल आ गया कब्र का, पढ़िए। मा मा दीनु, हम जबर नहीं है तो मा दीनु की पढ़ेंगे ना। हाँ आपका दीन क्या है? जी, आपका हाँ दीन क्या है? दीनी इस्लामू, मेरा दीन इस्लाम है। हाँ, दीनियल इस्लाम। दीनियल इस्लामू जी। एक मिनट, थोड़ा बारीक हो जाता है। माँ दीनू का, अब ये दीनू का दीनू की इन्होंने यहाँ पे तो माँ दीनुक भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लगाया नहीं। और जाहिर है वो सामने वाला पता चलेगा कि मेल है या फीमेल है। तो हम्म। चूंकि आखिर में साकिन कर देते, उन्होंने साकिन कर दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो अगर कुछ सोच रही हैं किसी लड़के से पूछ रही हैं, तो फिलहाल आप मत दीनुक कहेंगी। हम लोग तो पढ़ना है, क्योंकि भी हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो हम बोलेंगे माँ दीनू का अगर हम किसी लड़के से पूछ रहे हैं, माँ दीनू की अगर किसी लड़की से पूछ रहे हैं, लेकिन आंसर सेम ही होगा। ठीक है, दीनियल इस्लाम। मस्मुहु पढ़िए। हाँ, इस मैंने पढ़ दिया है तो क्या। मसमुहु, मसमुहु उसका नाम क्या है? इस्मुहु राशिद, उसका नाम राशिद है। वेरी गुड। मन अंता, सॉरी नहीं। अंती है। मन अंती, आप कौन है? अना मुस्लिमतु, मुस्लिमतुन, मैं मुसलमान हूँ। जी हाँ, मैं एक मुसलमान हूँ। ये मैं तन्वीन एक का मुसलमान तर्जुमा भी हूँ। करें, जी मैं जी। एक मुसलमान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जी। जज़ाकल्लाह, बहुत ही अच्छा किया। एंड सुनने से लग रहा है रिजवाना कि यू आर कॉन्फिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो इसको जो है बिल्कुल अब थोड़ा बहुत बातचीत में भी लेके आए। घर में शीशे के सामने ही खड़े होके बोले, अगर कोई और नहीं बोल पा रहा है, बोलना चाह रहा है आपके साथ तो। लेकिन हमको बोलना पड़ेगा, मन अंता अना तिलमीजुन मन अंता। फिर आप अपना कहें अना मसमुकी, तो बोले इस्मी रिजवाना। इस तरह से करके हमें करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह रिजवाना। और अब आ जाए गौसिया। जल्दी आए, हम लोग के पास शायद सिर्फ 18 मिनट्स बचे। गौसिया नहीं आ रही है। हुमैरा, अच्छा ये लोग, सॉरी ये लोग एल हैं, ये लोग लिसनर है। नाइला आप आ जाइए। नफीसा आप आइए। नफीसा, क्या बात है, आपका माइक म्यूट नहीं हो रहा है। चलिए, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए करिए। मन हाजिही, आप कौन हैं? हाजिही उखीजुन। नहीं नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये मन हाजी ही, ये आप तो नहीं हुआ ये। सॉरी, मन हाजिही, हादी ही उख्ती, ये मेरी बहन है। ठीक है। ये मेरी बहन है। हाँ, आगे चले। मन रब्बुकी, तुम्हारा रब कौन है? रब्बी अल्लाहु, मेरा रब अल्लाह है। वेरी गुड। मस्मुहा, वेरी गुड। मैं यहाँ लगा दूं जीरो, जिससे आप लोग समझ जाएं कि हाँ, मसमुहा। वेरी गुड, इन्होंने अच्छा पढ़ा। मसमुहा, ट्रांसलेशन। मस्मुहा, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं नहीं नहीं, जमायर पहचाने, जमायर पहचाने। ये देखिए, हा है तो हर है, ये हर है। उसका नाम। उसका नाम क्या है? इस्मुहा सुआद, उसका नाम सुआद है। वेरी गुड। माँ का दीनों की, तुम्हारा दीन क्या है? दीन यल इस्लाम, वेरी मेरा गुड। दीन इस्लाम है। वेरी गुड, जजाकल्ला खैर। बहुत ही अच्छा आपने पढ़ा कि दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। ये देखिए, ये नॉर्मल इसलिए ये बुक लेके आना जरूरी है, क्योंकि वहां पे फिर ये सारी चीजें जो ये आरजी जेर जबर लगा के हम लोग मेन ग्रामर की क्लास में, ऐसे ही बच्चे इतना गर्म हो रहे होते हैं उनके दिमाग, तो ये चीजें वहां उतनी नहीं भी बताई जाती। यहाँ पे आपको किस तरह से चीजों को सीखने के बाद हमको अपनी जिंदगी में लेके आना है, ये क्लास इस बात के लिए। उसके बाद ले लेते हैं अफशा को। चलिए, अफशा आ जाए और करेंगी नेक्स्ट सेंटेंस जहां पे मेरा कर्सर है। अलीना वालिदी का, अईना वालिदू का। अब ये वालिदू वालिदू का,
ये वालिदू की पेश रहेगी। देखिए ये दो वर्ड है, ये वालिदू एक वर्ड है और ये का एक वर्ड है। तो वालिदू की तो पेश को जाने का कोई वो नहीं है, क्योंकि मुजाफ का तो एराब कुछ चेंज नहीं होता है ना। मुजाफ जबर जेर पेश कुछ भी ले सकता है, तो ये बाय डिफॉल्ट पेश में होता है, तो ये वालिदू ही रह जाएगा, क्योंकि इससे पहले कोई हरफ जर तो नहीं आया, तो ये क्यों जाएगा जेर में। तो इसीलिए देखिए एक टाइम ऐसा आता है जब आप ग्रामर इतनी कर लेते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि बिना हरकत के आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, कोई हरकत न लगी रहे और आप बिल्कुल जैसे उर्दू पढ़ रहे होते ना। अब उर्दू तो कभी सोचा भी नहीं है और इसी तरह पढ़ना शुरू हो गए ना बिना हरकत के। तो अरबिक भी इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही हो जाती है कि ऐना जी जी। वालिदू की, है ना। अब करिए आईना, आईना वालिदू की, तर्जुमा। वल्लजी, आपका वालिद कहाँ है। वेरी गुड। आपके जी वालिद कहाँ है, हम लोग तो थोड़ा इज्जत से बोलते हैं ना वालिद को, तो आपके कर जी देते हैं। जी। आपके वालिद आपके कहाँ वालिद है। कहाँ है। हाँ वल्ल वल्लदी, माशाल्लाह, आप तो मैं कुरान पढ़ रही हैं। ये वल्लदी नहीं है भाई, ये वालिदी है। मैम नजर नहीं आ रहा सही तरह, लेकिन आपको बहुत वो सवाल है। तो पता था ना, हाँ आपको जी। नजर आने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने कहा ऐन वालिदू की, तो आप ही ने सवाल हमें वालिद। ट्रांसलेशन करके बताया कि आपके वालिद कहाँ हैं, और फिर आप हम्म। आंसर कर रही हैं वल्लदी, है ना। हाँ। हम्म। वालिद के सही बारे है। में सवाल है तो वालिद का ही आंसर होगा। वालिदी बोले। वालिदी, वालिदी फिस्सूकी। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे मुरक्कबात की प्रैक्टिस की थी बोलने में, और इन्होंने बिल्कुल सही बोला। वालिदी फिस्सूकी, ये फी जो है सीन से जाके मिलेगा। वालिदी जी। फिस्सूकी, मेरे वालिद, ट्रांसलेशन कीजिए। घर, मेरे वालिद घर में है। ये सूख घर होता है। नहीं 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 नहीं, फिस्सूकी, हाँ, सू, फिस्सूकी, घर की अरबिक बताएं मुझे। वो तो बैत होता है। हाँ, फिस्सूकी और ये फिल सूखी बैती, बाजार होता है। बाजार। हम्म, हाँ जी, मेरे बाजार। वालिद बाजार में है। बाजार में है, हाँ जी। नीचे वाला आप करें, ये वाला करिए। हल इस्मुकी, नहीं नहीं, नीचे वाला करिए। सुआ, अच्छा। आइनु उम्मुकी, ऐनो कोई वर्ड उम, नहीं होता, ऐना होता, ऐना। आईना, आईना, वेयर का बिल्कुल मतलब नहीं होता है नजर। ऐना। ऐना उम्मू आईना, का। यहाँ पे देखिए हाँ। उम्मू का दिख रहा है मुझे, ये जबर है यहाँ पे, ठीक है। ऐना उम्मू का। अब किसी आदमी से बात हो रही है, अपनी बुक में आप देखिएगा जो आपके वहां लिखा होगा किताब में, हरकत आप उसी हिसाब से करेंगे। यहाँ चले जो मैं लगा दे रही हूँ उसके हिसाब से कर लें। ऐना उम्मू का। अब आप किसी लड़के से पूछ रही हैं, पूछिए, जी जी। ट्रांसलेशन कीजिए। आईना, लड़के से पूछ रही हूँ। इसका उम्मू का, ट्रांसलेशन करके तुम्हारी अम्मी दीजिए। कहाँ है। कि वो आपकी अम्मी घर कहाँ है। में है। हाँ, आपकी आपकी। अम्मी कहाँ है। उम्मी फिल बैती, वो वेरी घर गुड। में है। मेरी अम्मी बोले, मेरी अम्मी बोला आपने। मेरी, हाँ उम्मी, उम्मी जी फिल हाँ, बैती, उम्मी, मेरी अम्मी घर में है। मेरी अम्मी घर में है। वेरी गुड, जजाकल्ला खैर। अफशा, जमजम आ जाइए, जी। आप ये कीजिए। ये सेंटेंस पे आइए और इसके नीचे जाइएगा आप। खलिस्मो की स्वाद, क्या तुम्हारा नाम स्वाद है। नाम इसमें स्वाद है। हाँ मेरा नाम स्वाद है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी कीजिए, लास्ट सेंटेंस। हला अंती स्वाद, क्या तुम स्वाद हो। नाम अना स्वाद, हाँ मैं स्वाद हूँ। वेरी गुड। और ये लास्ट वाला ये भी कर लीजिए। ऐना उख्तु का, तुम्हारी बहन। उख्तु की, तुम्हारी बहन कहाँ है। उख्ती फिल हुजरती, मेरी बहन कमरे में है। वेरी गुड। तो आपने देखा कि ये दोनों मुरक्कब, इन दोनों मुरक्कबात में दोस्ती बहुत है। न सिर्फ ये कि ये कुरान और हदीस में बहुत ज्यादा आते हैं, मुरक्कबे जारी जो हरफे जर के साथ इसम बन के आता है, ये द मोस्ट फ्रीक्वेंट कंपाउंड वर्ड्स इन कुरान एंड हदीस यही दोनों है। और ये दोनों माशाल्लाह आपके इस क्लास में कवर हो गए। और ज्यादातर आप देखेंगी कि ये करीब करीब, देखिए मेरा घर है ना। अब आप कहेंगे मेरा, मेरी बहन, तो फिर उसकी पोजीशन भी बतानी पड़ती है ना, फिल हुजरती। तो ये अक्सर आप देखेंगे कि साइड बाय साइड, ना सिर्फ ये कि बहुत ज्यादा है, बल्कि इनमें आपस में दोस्ती भी बहुत ज्यादा है।
اب اس کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر باقی لوگوں کو لیتے ہیں. ام کلثوم رہ گئی ہیں, ان کو لیتے ہیں. یہ ہے آپ کے ضمائر رفع کی حالت میں, اور یہ ہے آپ کے ضمائر جر کی حالت میں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ضمائر کی لسٹ جر کی ہے. جب ہمیں مضاف الیہ چاہیے تو ہمیں جر کی ہی ضمائر چاہیے. تو یہ انا, انتا, انتی, ہوا, ہیا, یہ سب دیکھیں. اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہوا پہ انہوں نے نہیں لگائی حرکت, کیونکہ اب آپ کو آ جانا چاہیے. جیسے ہم لوگ اردو میں نہیں حرکات لگاتے, ویسے یہ لوگ بھی نہیں لگاتے. تو دھیرے 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 یہ ہم کو بنا حرکت پہ لے کے آئیں گے, لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے. تو انا کا کنٹمپریری یا انا کا جو ضمیر ہے حالت جر میں جو آتا ہے وہ ہے یا. انتا کا آتا ہے کا, انتی کا آتا ہے کی. بس یہ تا پہ زبر تو کا پہ زبر, تا پہ زیر تو کا پہ زیر. ہوا کا ہو اور ہیا کا ہا, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب آ جائے ام کلثوم, جلدی آئیے. ہاں, اب یہ کلثوم کریں گی ترجمہ اس کا. اسمی, اور پڑھتی جائیے اور ترجمہ کرتی جائیے. اسمی میرا نام, اسم ہوں اس مذکر وہ مذکر نہیں سوری بس بولے نہیں, اس کا اس کا اس کا نام مذکر. جی ہاں, اسمہا اس مؤنث کا نام. ویری گڈ ویری گڈ, ماشاء اللہ. اس مؤنث کا نام. آگے پڑھوں نیچے سے کتابی. نہیں, اب کسی اور کو چانس دے دیتے, سب لوگ ٹھیک ہے, میں. ٹھیک ہے, آپ لوگ میوٹ میں کر کے مجھے سب. اسپیکنگ کا بہت شوق ہے. یہ ہاں, اس کے تو نا آپ اسپیکنگ کا عربی. شوق ہے تو آپ اس بک کا پرنٹ آؤٹ لے لیں, اور فرسٹ لیسن سے لے کے 8th لیسن تک سارے سینٹینسز آپ لوگوں کو رٹ جانے چاہیے. پہلے ہم جب کوئی ٹھیک, نئی لینگویج سیکھتے ہیں نا, تو اس کا ایک یہ بھی انشاءاللہ. طریقہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا سمجھیں اور زیادہ زیادہ رٹیں. زیادہ زیادہ سینٹینسز ہم اس کو, کہ جب دماغ میں جب ہم کو بولنا ہو تو وہ میموری سے فٹ سے وہ سینٹینس آئے. ہم ٹرانسلیٹ نہ کریں کہ اسمی میرا نام, فٹ سے اسمی جی اتنا یاد ہو, اسمی میرا نام, اسمی میرا نام, کہ ہم جیسے ہی میرے خیال آیا میرا نام کا, دماغ سے اسمی نکل گیا. تو شروع میں ہم کو 800 سینٹینسز رکھنے پڑیں گے. جب ہم 800 چلے 1000 کرتے ہیں, 1000 سینٹینسز. اور آپ دیکھیں عربک میں سینٹینسز بہت چھوٹے ہیں. یہ اسمی ہے نا, اسمی اور آگے اپنا نام لگا دیں گے, ایک سینٹینس بن گیا. جی یا ہادہ کتابی کر دیں, وہ سینٹینس بہت چھوٹے چھوٹے سینٹینس آپ کے لیے ہیں اس بک میں. یہ سارے سینٹینسز بک لیسن 8 تک یاد کر لیں, اور پھر مجھے میسج کریں کہ مجھے سارے سینٹینسز یاد ہیں. میں نے سارے سینٹینسز یاد کر لیے بنا کسی حرکات کی غلطی کے اور بنا کسی نہ سمجھی کے, سمجھ کے یاد کر لیے. چلیے آ جائیے. اوکے, اب انشاءاللہ. ہمیں لگتا ہے فرزانہ نے تو کر لیا تھا, ہمیں لگتا ہے سب سے پہلے انہی کو میں نے بلایا تھا. فرزانہ جی میم پڑھ لیا, دوبارہ پڑھ لوں. آپ کر چکی. نہیں, میں ابھی بہت لوگوں کی چانس آئی نہیں ہے, میں ان کو لے لوں پہلے. سائمہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتابی میری کتاب, کتابوں کا تمہاری کتاب میل کے لیے, کتابوں کی تمہاری کتاب فیمیل کی, کتابہ اس کی کتاب میل, کتابہا اس کی کتاب فیمیل. ویری گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کی کتاب فیمیل. تو اچھی خاصی پریکٹس بھی دی جائے گی یہاں پہ. تو اس سے میں یہ بتا دوں, یہ ہے آپ کا ہوم ورک. اس میں آپ کو دیا ہوا ہے مبتدا اور خبر آپ کو لے کر آنی ہے. آپ چاہیں تو اپنی میموری سے لے کے آ سکتی ہیں. الفصل لکھیں گی آپ, اور اس کے آگے آپ خبر لگانی ہے. تو خبر آپ یہاں سے پک کر لیں, ٹھیک ہے. اور خبر کے ساتھ, خبر کو آپ تنوین کے ساتھ لگائیں گی. یاد رکھیں خبر کو تنوین کے ساتھ لگائیں گی. ایکسپٹ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی کلر تو نہیں ہے, زرقاؤ خضر, وہ تو نہیں. اگر کلر ہوتا ہے تو اس میں نہیں ہوتا نا, آؤ والے آواز میں تنوین نہیں ہوتی. وہ آپ نے غیر منصرف کا وہاں پڑھ رکھا ہے اپنی کلاس میں. الحمدللہ ہماری اس کلاس میں اعراب پورے ہیں, بہت بڑا پورشن آپ کا کور ہو چکا ہے الحمدللہ. تو یہ یہاں پہ مبتدا ہے,
آپ کو خبر لگانی ہے ہر اس کے ساتھ. مصیبت سمجھ کے مت کیجیے گا, انجوائے کر کے کیجیے گا کہ ہم اپنے آپ کو چیک کرنے جا رہے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا ہے تو ہماری ووکیبلری کتنی بڑھی, کیونکہ رول تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ الفصل, اور اس کے آگے آپ کو کوئی خبر لانی ہے, یہ میل ہے تو خبر بھی میل ہونی چاہیے. المنددۃ, اس کو صغیرۃن لگا دیں یہاں پہ. الباب, ہم کو کیا کرنا ہے کہ میل کے ساتھ میل خبر اور فیمیل کے ساتھ فیمیل خبر, یہ بس چیز آپ کی چیک ہوگی اور ووکیبلری چیک ہوگی. تو ووکیبلری اگر مشکل ہوگی آپ کو تو اگلی ایکسرسائز سے یہاں سے ووکیبلری لے لیں. پھر یہاں پہ یہ خبر دی ہوئی ہے اور آپ کو مبتدا لانا ہے, مطلب خبر صغیرن دیا ہوا ہے اور اس سے پہلے آپ کو کوئی سبجیکٹ لے کے آنا ہے, یعنی مبتدا لانا ہے. تو آپ کہہ دیں گے الولد صغیر, البنت صغیرۃ, کبیرن کا بولے الرجل کبیر, البنت کبیرۃ. اس طرح سے کر کر کے اپنا طویل, طویلۃ, قصیر, جو بھی آپ نے سینٹینسز دیکھے, ہم نے بھی بہت دن سے یہ کتاب نہیں دیکھی ابھی, تو کوشش کریں کہ وہی سینٹینس لے کے آئیں اپنی میموری سے جو آلریڈی آپ کر چکی ہیں. تو اسے بھی چیک کریں کہ یاد بھی ہو رہے ہیں سینٹینس, حزیل, حزیلۃ. تو یہ 2 ایکسرسائز آپ کو کرنی ہے. پورا 1 ہفتے کا ٹائم ہے. 1 ہفتے کا ٹائم جب دیا جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تھرسڈے میں کلاس ہے تو وینسڈے میں بیٹھے کر رہے ہیں, تو پھر تو ایک ہی دن کا ٹائم دینا چاہیے, پھر تو روز کلاس ہونی چاہیے. لیکن 1 ہفتے کا ٹائم جب مل رہا ہے تو آج آپ 2 لائن 3 لائن آج کر لیں, پھر 2 3 لائن کر کے ایک دن میں کریں. ٹھیک ہے, 2 لائن کر لیں تو ہمیں لگتا ہے کہ 1 ہفتے میں ہو جائے گا. تو روز کریں گے, اس سے آپ روز ٹچ میں رہیں گے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا. ایسے چنکس ہیں ٹائم والے, چھوٹے چھوٹے پیریڈ, اس میں آپ 2 لائن کر کے یہ کریں انشاءاللہ تعالی. ہوگا بیٹھ کے 1-2 گھنٹے اس طرح لگانے کی جو پرانے لوگ ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے, ان کو آتا ہے, وہ کتاب آپ کی کھلی ہوگی, پیچھے جا کے لیسن سے ہیلپ لیں. اوپن بک ہوم ورک ہے یہ, آپ کو ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. آپ پیچھے جا کے ہوم ورک سے مدد لے لیں, پیچھے جو ٹیکسٹ بک میں آپ کے سینٹینسز ہیں یہ سارے آ رہے ہوں گے وہاں پہ. الفصل کے ساتھ آپ فل وہ بھی لگا سکتی ہیں, مطلب مرکب جاری والے بھی یوز کر سکتی ہیں, کچھ بھی لگائیں, کوئی بھی خبر لگائیں, سنگل مفرد خبر لگائیں, مرکب خبر لگائیں, مفرد مبتدا لگائیں, مرکب لگائیں, جیسا کہ آج آپ نے مرکب اضافی کر لیا. تو انشاءاللہ تعالی یہ 2 آپ کی ایکسرسائز آپ کی ہوم ورک ہے. اور اگلی کلاس میں آپ لوگ اپنے ہوم ورک سے ہی پڑھ رہی ہوں گی, تو ظاہر ہے اگر آپ نے کیا ہوگا تو آپ آرام سے فر پڑھیں گی نا, آپ کا چیک بھی ہوگا. تو آپ سب لوگ 1 لائن کریں گے, اپنے ہوم ورک سے ہی آپ کو پڑھنا ہوگا, اور باقی سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی کریکشن بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیے کلاس ختم کرتے ہیں. 5 منٹ 4 منٹ آپ کے اوپر لیے, نہیں ہاں 5 منٹ لے لیے. میم اس کا PDF مل جائے گا؟ جی ہاں, آپ کلاس میں نہیں ہیں. ایسا کرتی ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ اور لوگ تو نہیں جوائن ہونے والے ہیں, چلے میں شیئر کر دیتی ہوں, اگر اور لوگ ہوں گے تو پھر آپ لوگ ان کو فارورڈ کیجیے گا. میں ابھی 1 میم گھنٹے کے اندر, آج کی ریکارڈنگ بھی شیئر کر دیں, یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے. جی ہاں ریکارڈنگ بھی آئے گی. ریکارڈنگ میں دیکھیں کہ بیچ میں ہم جو ریکارڈنگ 2 وجہ سے کہ جو کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتے ہیں وہ بھی نکال دیتے ہیں, غیر ضروری چیزیں جو کہ کلاس کرتے وقت ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ تھوڑا آن لائن ہوتے ہوئے بھی آپ ہم کو تھوڑا قریب سمجھیں اپنے, تو اس وجہ سے تھوڑا ایکسٹرا یہاں پہ ہوتا ہے بولنا. لیکن ریکارڈنگ میں اس کو ایڈٹ کر کے نکال دیتی ہوں, اس لیے کہ جس سے ریکارڈنگ سننے والوں کا وقت بچے. ظاہر ہے ان کو اس وقت تو پتا ہے کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں, تو پھر یہ جو باتیں جیسے ابھی کر رہی ہوں یہ ساری باتیں وہاں نہیں ہوں گی. تو اس لیے ایڈٹ کرنے میں, پڑھانے میں جب 1 گھنٹہ لگتا ہے نا, تو ویڈیو کو ایڈٹ کرنے میں 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اسی حساب سے آپ ویٹ کیجیے گا, انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کو ریکارڈنگ بھی مل جائے گی. اور صرف یہی ایک کلاس نہیں ہے, ساری ہی کلاسز کی ریکارڈنگ ایڈٹ کرنی ہوتی ہے, تو وہ ابھی پچھلا ہی کیو میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو کلاس میں جب کریں تو بہت مطلب یہ سوچ کے کبھی بھی میں اب ایک بیچ سے میں ریکارڈنگ دینا بند کرنے جا رہی ہوں, تو پلیز آپ لوگ اپنے بیچ میں بالکل ایسا مت کیجیے گا کہ مجھے ایسا سوچنا پڑے, کیونکہ ریکارڈنگ آتی ہے تو ریکارڈنگ آتی ہے ہیلپ کے لیے.
लेकिन कुछ लोग क्या है कि वो ये सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग आएगी तो क्लास में हम थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाएं, चले चाय बनाने चले जाएं या क्लास ही छोड़ दे पूरी पूरी, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आ ही रही है। आप यकीन करें कि लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग में बहुत फर्क है, वो ऐसा नहीं हो जी सकता। तो लाइव लाइव में क्लास, सही समझा। हाँ, चाहे मैम आपके सामने होंगी, लाइव में तो बहुत जी मजा आता है वो पढ़ने का। बिल्कुल, आपको आपके कॉन्शियस माइंड को पता है कि मैं आपके, हालांकि बिल्कुल यही चीज मैं वहां भी बोल रही होंगी, रिकॉर्डिंग में बिल्कुल यही कुछ होगा, लेकिन आपका दिमाग बहुत क्लेवर है, आपसे ज्यादा क्लेवर आपका दिमाग है। आपका दिमाग सोचने को पता चल रहा होता है कि इस वक्त वहां मैं मौजूद नहीं हूँ, फिर वो चीजें वैसी नहीं आ रही होती हैं। तो जी उस क्लास में अच्छी खासी इनडिसिप्लिन और केयरलेसनेस आ चुकी, जिसकी वजह से आफ्टर 2-3 वीक्स वहां रिकॉर्डिंग नहीं आ रही। मैं पोल करके मैं चेक भी करती हूँ ना, जो मैं पोल करती हूँ इससे ये चेक भी होता है कि भाई लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। जब मैं देखती हूँ कि नहीं सुन रहे और वही लोग सुन रहे हैं जिनको आ रहा है ऑलरेडी, मतलब होता क्या है कि जिनको आ रहा होता है वो शौक से रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, एक्चुअली दे डोंट नीड, मुझे उनके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बिना रिकॉर्डिंग के, जिनको नहीं आता है जिनको कम आता है उनके लिए रिकॉर्डिंग है कि आप 3 बार सुने 4 बार सुने। तो चूंकि क्लास में ही आने की तलब उनकी और नियत में ही थोड़ा सा वो हो गया, तो बाद में भी अल्लाह ताला तौफीक जी नहीं देते। तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि ये मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि वो लोग जी जिन्होंने क्लास उनकी, जब उन्होंने जानबूझ के मिस करना शुरू कर दिया ये सोच के कि रिकॉर्डिंग तो आ ही रही है, तो अल्लाह ताला ने रिकॉर्डिंग सुनने की भी तौफीक छीन ली उनसे, फिर वो रिकॉर्डिंग भी जी अब नहीं सुनते और परेशान होते हैं क्योंकि 7-8 लेसन्स मिसिंग है। तो याद रखें कि जब बहुत कोई इमरजेंसी, और इमरजेंसी भी डिसाइड करना हमको होता है कि क्या चीज इमरजेंसी है और क्या चीज नहीं है। हमने तो अपनी छोटी छोटी चीजों को इमरजेंसी बना लिया। तो रियल इमरजेंसी पे ही क्लास छोड़ें, तो इंशाअल्लाह ताला रिकॉर्डिंग फायदा भी देगी और रिकॉर्डिंग आपको मिलती भी रहेगी। वरना आपको रिकॉर्डिंग न मिलने की परेशानी हो जाएगी और मुझे रिकॉर्डिंग को एडिट न करने का आराम हो जाएगा। तो मैं उस क्लास के लिए बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लास की रिकॉर्डिंग एडिट करने से मैं बच जाऊंगी। तो आएगी इंशाअल्लाह ताला आपके पास आपकी रिकॉर्डिंग, लेकिन क्लास में मौजूद रहे, रिकॉर्डिंग को उस सेंस में मत लें, ठीक है? जी मिसयूज ना हो, इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग यूज होना चाहिए आप बार बार। और रिकॉर्डिंग के लिए जिनको आता है वो रिकॉर्डिंग बैठ के न सुने, है ना, क्योंकि वो बैठ के दूसरे इंपॉर्टेंट काम कर ले। मुझे मालूम है आप सब इसमें से सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं, फिर जाहिर है घर है और सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। तो जिनको बहुत अच्छी तरह आ चुका है वो भी ये ना सोचे कि हम ना सुने, क्योंकि पोल में उनका वोट भी नहीं आएगा तो ये रिकॉर्डिंग पे उसका भी असर जाएगा। ये तो मैं अपनी बात कर रही। और आपकी बात क्या है कि आप जब रोटियां बना रही हो, बर्तन धो रही हो, सही कर रही हो, तो ऐसे में जब आप उसको मोबाइल पे प्ले करके छोड़ दें, क्योंकि आपको आता है, आपको उसको स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, वो बस ऐसे ही प्ले कर दें, चलते फिरते आपका रिवीजन होता रहे। चलिए इंशाअल्लाह ताला। और ये क्लास, ये बुक वाकई सारे लोग रट ले। अगली क्लास मैं शुरू करूंगी तो मैं उर्दू में सवाल नहीं करूंगी, जो आप लोग कैसे हैं और क्या है मैं पूछती हूँ ना सब, ये कोशिश करूंगी कि बीच बीच में जो अभी उर्दू बोल रही हूँ अरबिक थोड़ा थोड़ा आप लोगों से बोलूं, ठीक है? प्रैक्टिस में भी उसको लेके आएंगे। उसके लिए जरूरी है कि इस हफ्ते जितने सेंटेंसेस आते हैं वो सब आप उसके रट्टे मार के अपने मेमोरी वाले दिमाग के कंप्यूटर में उसको इनपुट कर दें, मतलब उसको फीड कर दें वहां पे, जिससे जब हम पूछे तो दिमाग से फटाफट कंप्यूटर की तरह निकल के आए। आपको पता है कि हमारा दिमाग सबसे बड़ा कंप्यूटर, सुभान अल्लाह, इसी दिमाग को देख के आइडिया लगा कंप्यूटर का और कंप्यूटर इजाद हुआ। हम इतना बड़ा कंप्यूटर लेके उसको जो है डोरमेंट कंडीशन में छोड़ के उसको रखा हुआ है। बहुत मैम सारी आप हमारे पास बिट्स एंड बहुत बाइट्स अच्छी है। चलिए क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल मैं घर पे नहीं हूँ,